कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है और सीजीआई की तरफ से कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि यह सिर्फ कोलकाता का एक भयावह मामला नहीं है, यह देश के डॉक्टरों की सुरक्षा का मामला है। महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा पर राष्ट्रीय सहमति बननी चाहिए। सीजीआई ने इस मामले की सुनवाई करते हुए ये अहम टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का सुओ मोटो लेते हुए आज सुनवाई का वक्त मुकर्रर किया था और अब सुनवाई जारी है और चीफ जस्टिस की कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां सामने आई हैं। सीजीआई ने कहा है कि हमने ये स्वतः संज्ञान इसलिए लिया क्योंकि ये सिर्फ कोलकाता का एक भयावह मामला नहीं है, बल्कि पूरे देश भर के डॉक्टर्स की सुरक्षा का मसला है। खास तौर पर महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा और उनके वर्किंग आवर का मसला है और नर्सिंग स्टाफ। इस पर एक राष्ट्रीय सहमति बननी चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा हो और उन्हें संविधान में समानता मिली है। इन तमाम बातों का जिक्र सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की तरफ से किया गया। इस बात का जिक्र भी सुनवाई के दौरान किया जा रहा है कि ये केवल रेप भर का मसला नहीं है, चिंताजनक स्थिति है। पीड़िता का नाम सार्वजनिक हुआ, तस्वीरें दिखा दी गई। ऐसे में कुल मिलाकर इस पूरे मामले में अलग अलग याचिकाएं भी हैं जिस पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही। इस वक्त हो क्या रहा है, जरा एक नजर इस पर डाल। No, my lord, we have something. Inquest shows it's a case of murder, Murad. Inquest shows it's a case of murder. Inquest is done. The postmortem is, the autopsy is conducted. Yes. Now, until the 9th, no FIR indicating that this is a clear case of a murder has been made out. It has, Murad. I'm sorry. I'll place those facts before you. It has been, Murad. Lord, may I suggest? From Lord, may I unnatural death, suggest? he registered the case Lord, for murder. That, We caught the victim. He is a civic worker, Murad. It's an individual act. I show all that, Your Lordship. and that's the first aspect. Yes. What was the principal doing? Why did he not, why was this kind of inaction on the part first an attempt to pass this off as a suicide instead of a murder? I'm sorry, Murad. That's not correct. Not recording, not registering an FIR till late in the evening. Third, the body itself is handed over to the parents sometime in the evening for cremation. Fourth, and that's a matter of very serious concern. On the next day, the doctors, because they were all doctors working with her, the doctors are on protest. A group of persons, a mob assembles at the hospital. The hospital is invaded and the critical facilities are damaged in the morning or whenever the mob enters. What was the police doing? Yes. Murad, we have videos for all. Murad, let me first of all state. Surely, Mr. Sibal, What? the police, Lord, a very serious offense has taken place. The crime scene is within the precincts of the hospital. Now, that is the first thing that the police have to do, namely to protect the crime scene. What are they doing? That's They allow vandals to enter the hospital. It's impossible that 7,000 people first can of all, gather without of all, the consent. Please, one second. allow me. Lord, This is- 7,000 people One can second. never gather without knowledge or consent of the police. This is not an adversarial litigation. It's not. Therefore, let us not be in denial mode. One girl has lost life One second. by not only, my lord, a sexual pervert, he's an animal. Sir, Principal, after the principal resigns from this medical college, he sent to another he's appointed as a principal of another college. He doesn't resign. But anyway, be that as Murad, let me first. Conduct, at the least, his conduct is under scrutiny, and he's appointed as a principal somewhere else. Lord, this is all, we have a note on all this misinformation. Lord, it's not contradict each other. There is a high court What order. is the reality? Just show it to you. Let them file the report, not But hide just show it to matter you. tomorrow. My lord. Couple of things which we would like Would to be do. there. Well, let's make it very clear. Yeah. We would want the investigation has been handed over to the CBI. Bureau of Investigation. Yes, done, yes, We want CBI to file a status report before this court on Thursday. correct. We will take up the case on Thursday. We want CBI to apprise. देखिए, us सुप्रीम on कोर्ट the की latest कार्यवाही की investigation. तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बहुत सख्त रुख
इस मामले को लेकर दिखाया है और उन्होंने सवाल पूछा है कि एफआईआर जो दर्ज की गई कोलकाता पुलिस की तरफ से, उसमें मर्डर की बात स्पष्ट क्यों नहीं लिखी गई, क्राइम सीन को संरक्षित क्यों नहीं किया गया। इतना बड़ा केस सामने आने के बाद इतनी बड़ी और जघन्य वारदात जहां पर हुई थी, उस क्राइम सीन को संरक्षित क्यों नहीं किया गया, परिवार को बॉडी क्यों नहीं दिखाई गई। ये तमाम सवाल सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से पूछे गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सरकार का पक्ष रखने के लिए जाने माने वकील कपिल सिब्बल इस वक्त मौजूद हैं। उनकी तरफ से दलीलें अभी दी जानी बाकी हैं। वो लगातार इस बात का जिक्र करते रहे कि उन्हें परमिशन दी जाए अपनी बात रखने के लिए। आरोपी जानवर था, पुलिस नाकाम रही। ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की सामने आई है, सीजीआई के सामने आई है और साथ ही साथ कोलकाता पुलिस की नाकामियों का जो पुलिंदा है, जिसका जिक्र बार बार हो रहा है तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में भी, उसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जितेंद्र, बहुत सख्त रुख इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सामने आया है। जी बिल्कुल, देखिए सीजीआई की तरफ से आज कई अहम सवाल उठाए गए हैं। सबसे पहला सवाल उठाया गया पूरी कोलकाता पुलिस की जांच के ऊपर, जिसमें साफ तौर पर सीजीआई की तरफ से कहा गया कि जो स्पॉट था उसको संरक्षित क्यों नहीं रखा गया। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो आरोपी है वो बिल्कुल जानवर की तरह से बर्ताव किया है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि एक भयानक अपराध और क्राइम सीन को संरक्षित कर रखना चाहिए था। और साथ ही जो एफआईआर थी उसमें मर्डर का सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया गया, यानी कि मर्डर की जो बात है वो स्पष्ट तौर पर नहीं बोली गई है। तो ये वो तमाम सवाल है जो आज सीजीआई की तरफ से उठाए गए हैं और कपिल सिब्बल को अपना जवाब देना अभी पूरे मामले में बाकी है। जी बिल्कुल, जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो कोलकाता के डॉक्टर्स हैं वो भी इस कार्यवाही को देख रहे हैं। हमारे सहयोगी कुमार कुंदन भी उनके साथ मौजूद हैं। कई अहम बातें कही गई हैं। सीजीआई की तरफ से कहा गया कि हम सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट तलब करते हैं, क्योंकि अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है और सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है सुप्रीम कोर्ट ने। सीजीआई ने कहा कि एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई जाए जो देश भर के चिकित्सकों की सुरक्षा पर अपने सुझाव दे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि हम इस पूरे मामले की निगरानी करेंगे। यह बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अब इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है और साथ ही साथ डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स बनाए जाने का भी जिक्र सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई चल रही है और इस बीच हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जितेंद्र शर्मा और इसके अलावा कुमार कुंदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन, इस पूरे मामले में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का अब तक का रुख रहा है, साफ है कि इस पूरे मामले पर कोर्ट बहुत ज्यादा सख्त है, चाहती है कि इस मामले में टास्क फोर्स केवल बनाई ना जाए, लेकिन वो इस बात को सुनिश्चित करे जिस मांग को लेकर डॉक्टर सड़कों पर है वो पूरी हो। देखिए प्रतिमा, आपको समझना पड़ेगा कि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी डॉक्टरों में ही नहीं बल्कि आम जनता में भी पूरे देश में है और जिस तरह की घटना हुई है उसने सबको झकझोर के रखा है। उम्मीद जो है वो कहीं से किसी को नजर नहीं आ रही है। केंद्र सरकार भी कई तरह के सांत्वना देने की कोशिश कर रही है, कई तरह की बातें कर रही है, लेकिन डॉक्टरों को उन पर भी यकीन नहीं है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही है, उस पर भी डॉक्टर कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार की भूमिका है वह भूमिका कहीं ना कहीं उस तरीके से पॉजिटिव नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए। ऐसे में जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया है तो उसमें आप ये भी देखिए कि तमाम तरह के डॉक्टर्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी अपने आप को पार्टी बनाने की बात की है, जिसमें फोर्डा शामिल है, जिसमें दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन शामिल है और भी तमाम तरह के संगठन शामिल है। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि हमारी निगरानी में पूरी जांच होगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल जरूर खड़े करता है और यह एक आश्वासन भी एक तरीके से है उन डॉक्टर्स कम्युनिटी को जो इस बात की डिमांड कर रहे हैं बार बार कि जो ट्रायल है वो फेयर हो, क्योंकि कोलकाता पुलिस ने जो कुछ भी किया उस पर किसी को भी थोड़ा सा भी यकीन नहीं है। इसका एक पहलू ये भी है प्रतिमा, ये भी समझना पड़ेगा कि अविश्वास की वजह से देश के 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है हड़ताल पर हैं और उसका असर मरीजों पर भी पड़ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो कुछ भी कार्रवाई है, अगर उस कार्रवाई से थोड़ा सा भी विश्वास जगता है तो सबसे पहले तो डॉक्टर काम पे लौटेंगे जिससे कि देश के मरीजों का भला हो, और दूसरा वो विश्वास जगेगा कि जो ट्रायल है, जो जस्टिस है, जिसकी ये डिमांड कर रहे हैं, इनको उम्मीद आएगी कि वो जस्टिस होगा। इन सब के बीच आपको एक डेवलपमेंट बताना चाहूंगा। मैं अभी सीबीआई हेडक्वार्टर पे हूं और अभी अभी
जो पूर्व प्रिंसिपल हैं वो सीबीआई दफ्तर यहाँ पे पहुँचे हैं और उनसे आज भी पूछताछ लगातार शुरू होने जानी है। दूसरी दो बात और जानकारी दे दूं, संभव है अब से थोड़ी देर बाद जो संजय रॉय है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए उसका जो है राजीनामा लिया जाए और कोलकाता के ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में संभव है आज शाम में उसका पॉलीग्राफी टेस्ट भी शुरू हो जाए। प्रतिमा। ठीक है, बिल्कुल कुमार, बने रहे आप हमारे साथ और सीबीआई दफ्तर पर ही आप इस वक्त मौजूद हैं। वहां पर पूछताछ के सिलसिले को आगे बढ़ाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई के लिए जो खबर है वो ये कि गुरुवार तक अब सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आज है मंगलवार, गुरुवार तक सीबीआई को इस मामले में अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी होगी सुप्रीम कोर्ट को। यह भी आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। जो हालात हैं ऐसे में डॉक्टर काम कैसे करेंगे, हमें डॉक्टर्स की सुरक्षा की चिंता है। एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई जाए जो इस मसले को लेकर गंभीरता से विचार करे कि आखिर डॉक्टर्स की हॉस्पिटल के अंदर सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। इस पर कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया है। और इस बीच बड़ी खबर, शव को अंतिम संस्कार के लिए कब सौंपा? सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह अहम सवाल पूछा है। शव को अंतिम संस्कार के लिए कब सौंपा गया? ऐसे में जो कपिल सिब्बल जो सरकार का पक्ष रख रहे हैं कोर्ट में, उनकी तरफ से कहा गया रात 8:30 बजे। इस पे सीजीआई ने कहा कि शव सौंपने के 3 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की गई। ये क्या है? कई तरह के सवाल इस दौरान पूछे जा रहे हैं सरकार की तरफ से पेश हो रहे वकील कपिल सिब्बल से कि शव को अंतिम संस्कार के लिए आखिरकार कब सौंपा। और कुमार कुंदन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कुमार, देखिए, शुरुआत से ही इस जघन्य वारदात के सामने आने के बाद से ही लगातार सवाल उठ रहे हैं। सीबीआई की अब जिम्मेदारी है कि उन सवालों के जवाब तलाशे जाएं। सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार तक सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट भी तलब कर ली है। सीबीआई के हाथ में क्या नया है? देखिए समीर, जिस तरीके से जांच हुई, जो स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने सब कुछ किया, उसने एक तरीके से सब कुछ गुड़गोबर कर दिया है। शायद यही वजह है कि सीबीआई के हाथ अभी तक खाली हैं और वो फॉरेंसिक एविडेंस ही जुटाने में लगी हुई है इतने दिनों से। कभी 3D मैपिंग कर रही है, कभी उनकी डायरियों को तलाश रही है, कभी पुराने पन्नों को देख रही है, कभी उन जगहों पर जा रही है जिन जगहों पर जो आरोपी है वो गया है। आप सोचिए कितना ये मतलब जघन्य वारदात होता है। और उसके बाद प्रिंसिपल सबसे पहले सुबह में अपने अस्पताल में एक बैठक करते हैं, उस बैठक में वो आगे की रणनीति तय करते हैं। उसके बाद पुलिस को जाकर इन्फॉर्म किया जाता है, फिर पुलिस आती है और फिर पोस्टमार्टम लेकर तमाम तरह की चीजें होती है। पोस्टमार्टम होने के बाद भी आनन फानन में बॉडी को जला दिया जाता है। उनके माता पिताजी को देखने कई सारे ऐसे लूप हॉल्स हैं जिसको देखकर एक आम आदमी को भी लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा एक तरह से साजिश की बू आती है। शायद यही वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है और इतने दिनों के बाद भी सीबीआई के हाथ आधिकारिक रूप से अभी तक खाली हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग की रिपोर्ट भी सीबीआई के पास अभी तक नहीं आ पाई है। हालांकि जो अपुष्ट सूत्र हैं उसके हिसाब से कोलकाता पुलिस के पास आ चुकी है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यही उठता है, घूम फिर के कहानी आती है कि आखिरकार कोलकाता पुलिस ने, जो कि एक कह सकते हैं कि प्रोफेशनल पुलिस मानी जाती है, उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया? क्या किसी को बचाने के लिए किया या इसके पीछे कोई और भी शख्स था? तो तमाम ऐसे पहलू हैं जिसके लिए सीबीआई को जांच का दायरा दिया गया है और इस जांच के दायरे में वो सब लोग आ रहे हैं जिसको सीबीआई को शक हो रहा है और सीबीआई सबसे पूछताछ भी कर रही है। लेकिन अगर हम हाथ की बात बोले तो अभी भी सीबीआई के हाथ आधिकारिक तौर पे खाली हैं। ये जरूर है कि सीबीआई अपने स्टेटस रिपोर्ट में बताएगी कि उन्होंने अब तक क्या क्या किया है, किन किन लोगों से पूछताछ की है, किन किन लोगों से लगातार पूछताछ चल रही है, किनका पॉलीग्राफ टेस्ट होना है, किनका साइकोमेट्रिक टेस्ट किया है, किनका जो है नार्को टेस्ट भी करने की तैयारी है। तो ये सब अपने सीबीआई अपने जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसका दायरा उसके सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने गुरुवार को पेश जरूर करेगी। समीर। तो कुमार कुंदन ये अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके से पूरे मामले में अब तक की जांच हुई है और अब तक इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने तमाम पक्ष रखे जा रहे हैं कि जांच कहां तक पहुंची है। इस मामले में ये भी अभी का सबसे लेटेस्ट अपडेट है कि पूर्व प्रिंसिपल आरजीकर अस्पताल के वो सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं, क्योंकि लगातार उनसे सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। शुरुआत से ही संदीप घोष ने इस पूरे मसले को लेकर अलग अलग तरीके के बयान दिए हैं जो खुद सवालों के घेरे में है। इस बीच आपको बता दें, एसजी ने नेशनल टास्क फोर्स को लेकर भी स्वागत किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सॉलिसिटर जनरल ने नेशनल टास्क फोर्स का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि नेशनल टास्क फोर्स बनाई जाए, हम खुद इस पूरे मामले की निगरानी करेंगे। तो ऐसे में एसजी ने इसका स्वागत किया। लेकिन कई सवाल भी उठाए गए हैं। सीजीआई ने पूछा कि शव
सौंपने के 3 घंटे बाद एफआईआर क्यों दर्ज की गई? जितेंद्र, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका जिक्र सीजीआई की तरफ से आज किया गया। ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल पेश हो रहे हैं, उनकी तरफ से भी जो दलीलें दी जाएंगी वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन कई सवाल कोलकाता पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं और ये बहुत गंभीर सवाल हैं जो इशारा ये करते हैं कि कहीं किसी को बचाने की कोशिश तो नहीं हो रही थी। जितेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, जितेंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कुमार कुंदन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सीबीआई दफ्तर से ही वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, जरा एक बात बताइए कि अभी तक सीबीआई के जो सोर्सेज हैं आपके, उनकी तरफ से जो जानकारियां आपको मिली हैं, कहीं सीबीआई को इस बात का कोई शक है कि इस मामले में जो मुख्य आरोपी अभी तक गिरफ्त में है संजय रॉय, जिसका पॉलीग्राफी टेस्ट भी आज शाम को होने जा रहा है, उसके अलावा भी इस वारदात में कोई दूसरा या तीसरा शामिल था क्या? इसका कहीं से कोई शक सीबीआई की टीम को है क्या? देखिए, सीबीआई की जो प्रारंभिक जांच है उसमें एक जांच तो क्लियर है कि संजय राय उस जगह पे था जिस जगह पे ये घटना हुई है। हाँ। तो संजय राय के इतर और कौन से लोग थे, इसकी जानकारी सीबीआई अभी तक आधिकारिक रूप से नहीं दे पाई है और सीबीआई इसमें एक तरीके से कह सकते हैं फूक फूक कर कदम रख रही है। कल भी हमने देखा सीबीआई बाकायदा उस अस्पताल का एक तरीके से कह सकते हैं ज्योग्राफिकल मैपिंग कर रही थी और बाकायदा चौथे फ्लोर के नहीं बल्कि ऊपर छत पे जाके उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि कहीं कोई ऐसा एग्जिट गेट तो नहीं है जिसमें कोई आया हो और उस एग्जिट गेट से निकल गया हो, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो सामने है, जिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संजय राय को गिरफ्तार किया गया था, उस सीसीटीवी फुटेज से इतर भी क्या कोई रास्ता है जिससे कोई आ सकता है और निकल के जा सकता है? क्योंकि जिस तरीके से ब्रुटैलिटी हुई है उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये एक शख्स का काम नहीं है, एक ऐसी सामान्य धारणा है। लेकिन इसको एविडेंस के तौर पर पेश करना और प्रूफ करना उतना ही मुश्किल है जितना ही सीबीआई को यह बताना कि वहाँ पे और उसके अलावा कौन कौन सा शख्स था। अगर कई सारी कड़ियों को जोड़ें समीर, तो आपको ऐसा लगता है कि सीबीआई हर लोगों से, कल भी पीड़िता के घर पे गए हैं सीबीआई और वहाँ 6 घंटे से ज़्यादा जो है लोगों से पूछताछ की है, उनके माता पिता इसका दोबारा बयान लिया है, उनके घर की भी मैपिंग की है, 3D मैपिंग की है, उनके घर से जो डायरी जो पीड़िता के पास से मिली थी, उन डायरी के कुछ पन्ने गायब थे, उसको जानने की कोशिश की है। इसके अलावा जो मिसिंग कैरेक्टर है सीबीआई उसके पास भी जाने की कोशिश कर रही है, जैसे कि वो डिलीवरी बॉय जिसने रात को खाना पहुँचाया था, अभी तक वो मिसिंग कैरेक्टर है, उसको भी ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो सीबीआई फिलहाल अभी कुछ भी आधिकारिक रूप से नहीं बता रही है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि उसको इस बात की जानकारी है कि एक शख्स जो संजय राय था वो वहां था, उसके इतर कौन कौन था उसी की जानकारी सीबीआई जुटाने की कोशिश कर रही है और इसके माध्यम से वो कातिल तक पहुंचना चाहती है और उसके मोटिव के लिए भी। और इस वक्त आपको एक और अपडेट बता देते हैं कि इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की तरफ से डॉक्टर्स से दरख्वास्त की गई है कि वो अपने काम पर वापस लौटें और इसके अलावा कई तरह के सवाल भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण है कि जब नेशनल टास्क फोर्स का जिक्र किया गया सीजीआई की तरफ से, तो उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि इसमें हर वर्ग से आने वाले डॉक्टर्स को शामिल किया जाए ताकि डॉक्टर्स की जो सुरक्षा है उसे सुनिश्चित किया जा सके। इस पूरे मामले की निगरानी खुद सुप्रीम कोर्ट करेगा, ये भी साफ कर दिया गया। लेकिन डॉक्टर से इस दौरान इंश्योर करने के लिए कहा गया है कि वो अपने काम पर लौटेंगे और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ली जाएगी। बिल्कुल, और पुलिस पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं सीजीआई ने भी। कोलकाता पुलिस की जांच शुरू से कटघरे में रही, कुमार कुंदन, और आप इस जघन्य वारदात के सामने आने के बाद वहां पर तुरंत पहुंच गए थे, इसलिए मैं आप ही से इस सवाल का जवाब लेना चाहूंगा कि आखिर कोलकाता पुलिस की दलील क्या है? शव सौंपने के 3 घंटे बाद एफआईआर क्यों दर्ज की जाती है? कुमार कुंदन, ये सवाल सीजीआई की तरफ से भी पूछा गया है और उस एफआईआर में भी, जबकि घटनास्थल का मुआयना करने वाला जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसको ये क्लियर कट केस मर्डर का नजर आना चाहिए था, वो नहीं हुआ। एफआईआर में भी क्लियर कट मर्डर का केस दर्ज नहीं किया गया, जो घटना स्थल है उसको कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया। एफआईआर लिखने में भी 3 घंटे की देरी हुई, शव सौंपने के 3 घंटे बाद इस मामले की एफआईआर लिखी जाती है। यानी कई ऐसे सवाल हैं जो बहुत मौजूद हैं। कोलकाता पुलिस का क्या कहना है? क्यों हुआ ऐसा? क्यों लापरवाही हुई? देखिए,
देखिए समीर, आपको मैं बताऊं कि टीवी9 भारतवर्ष के पास जो पुख्ता जानकारी है और जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जी। उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक 9:45 पर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने कोलकाता पुलिस को एफआईआर की बात के लिए एक आधिकारिक पत्र लिखा है और उस पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि एक लड़की है जो कि डेड पाई गई है। उस लड़की का नाम नहीं लिखा हुआ है और उसमें और कोई चीज़ नहीं लिखी हुई है, सिर्फ उसका आइडेंटिटी भी छुपाया गया है। हालांकि ये आइडेंटिटी तब छुपाई जाती है जब उसके साथ रेप या किसी और तरह की बातें होती है। तो 9:45 पर कोलकाता पुलिस को एक लेटर आता है एफआईआर के लिए और ये एफआईआर दर्ज जो होता और है वो कुंदन, मैं दोपहर आपको 2 रोकना चाहूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर, सीजीआई मामले में आज का आदेश पड़ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी9 भारतवर्ष पर आपके सामने, मामले में आज का आदेश सीजीआई की तरफ से पढ़ा जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिया गया था और तमाम तरह के पक्ष रखे गए सीजीआई के सामने, लेकिन अब सीजीआई इस पूरे मामले में आदेश पढ़ रहे हैं। कुछ ही पलों में आपके सामने वो आदेश होगा जो इस वक्त पढ़ा जा रहा है। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है और इस दौरान बंगाल सरकार और पुलिस से कई कड़े सवाल भी पूछे गए। Doctors in India called for a nationwide withdrawal of medical services except emergency services for 24 hours on 17 August 2024. In the aftermath of the brutal incident and the demonstrations which followed, the state government was expected to ensure the deployment of the state machinery to prevent a breach of law and order. It was all the more necessary to do so since investigation of the crime which took place in the precincts of the hospital was underway. We are unable to comprehend how the state was not prepared to deal with the incident of vandalization of the premises of the hospital. Nationwide protests following the brutal incident in RG Kar Medical College Hospital have brought the issue of the lack of institutional safety for doctors to the forefront. Medical associations have consistently raised issues of the lack of workplace safety in healthcare institutions. Medical professionals, in the performance of their duties, have been unfortunate targets of various forms of violence. Hospitals and medical care facilities are open throughout the day and night. Medical professionals, doctors, nurses, and paramedic staff work round the clock. Unrestricted access to every part of healthcare institutions has made healthcare professionals susceptible to violence. Patients of relatives in anguish are quick to attribute untoward results to the negligence of medical professionals. Such allegations are immediately followed by violence against medical professionals. In May 2024, 2 on-duty doctors were allegedly attacked by relatives of a patient who died during treatment in a hospital in West Bengal. In another incident in May 2024 in Bihar, following the death of a 25-year-old pregnant patient, a nurse was allegedly pushed off the first floor of the building by the kin of the patient. In August 2024, a final year resident in a hospital in Hyderabad was allegedly assaulted by a patient's attendants after the patient died due to medical conditions. These incidents of violence are a few among the many that have been unleashed against members of the medical community in the recent past. They are portents of a systemic failure to protect doctors, nurses, and paramedical staff in the confines of hospitals. With few or no protective systems to ensure their safety, medical professionals have become vulnerable to violence. With the involvement of systemic issues for healthcare across the nation, this court has had to intervene. Women are at particular risk of sexual and non-sexual violence in these settings. Due to ingrained patriarchal attitudes and biases, relatives of patients are more likely to challenge women medical professionals. In addition to this, female medical professionals also face different forms of sexual violence at the workplace by colleagues, seniors, and persons in authority. Sexual violence has had its origins even within the institution, the case of Aruna Shanbag being a case in point. There is a hierarchy within medical colleges, and the career advancement and academic degrees of young professionals are capable of being affected by those in the upper echelons. The lack of institutional safety norms at medical establishments against both violence and sexual violence against medical professionals is a matter of serious concern. While gendered violence is the source of more malevolent manifestations of the structural deficiencies in public health institutions, the lack of safety is of concern to all medical professionals. Preserving safe conditions of work is central to realizing equality of opportunity to every working professional.
This is not just a matter of protecting doctors. Their safety and well-being as health providers is a matter of national interest. As more and more women join the workforce in cutting-edge areas of knowledge and science, the nation has a vital stake in ensuring safe and dignified conditions of work. The constitutional value of equality demands nothing else and will not brook compromises on the health, well-being, and safety of those who provide healthcare to others. The nation cannot await another rape or murder for real changes on the ground. Several states, such as Maharashtra, Kerala, Karnataka, Telangana, West Bengal, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu, have enacted legislation to protect healthcare service professionals from violence and damage to property. All these enactments prohibit any act of violence against medical professionals. The offense is non-bailable and punishable with 3 years of imprisonment. However, these enactments do not address the institutional and systemic causes that underlie the problem, and enhanced punishment without improving institutional safety standards falls short of addressing the problem effectively. We have attempted to flag here the ground reality indicating the lack of institutional safety standards in healthcare institutions. A non-exhaustive formulation is set out below. A. Medical professionals who are posted for night duties are not provided adequate resting spaces. More often, doctors rest in the patient's room or in available public spaces. Duty rooms are scant. Separate duty rooms for male and female medical professionals are conspicuous by their absence in most healthcare establishments. B. Interns, residents, and senior residents are made to perform 36-hour shifts in conditions where even basic needs of sanitation, nutrition, hygiene, and rest are lacking. There is an absence of uniformity in terms of a standard national protocol. The fear of retribution prevents most healthcare professionals from questioning the absence of facilities for basic well-being. C. Lack of security personnel in medical care units is more of a norm than an exception. More often than not, medical professionals, which includes young resident doctors, interns, and nurses, are left to handle unruly attenders. Open access to healthcare facilities leaves medical professionals vulnerable to undesirable elements. D. Medical care facilities do not have sufficient toilet facilities. Most often, there is only one common toilet for medical professionals in one department. E. The hostels or places of stay for medical professionals are situated far from the hospital. Doctors and nurses who have to travel to and from the hospital are not provided transport facilities by the institution. Even within the precincts of the sprawling spaces of public hospitals, there is either inadequate or no transportation facilities for the safe commute of professionals. F. There is an absence or lack of properly functioning CCTV cameras to monitor ingress and egress to the hospital and to control access to sensitive areas. G. The patients and their attenders have unrestricted access to all places within the hospital, including intensive care units and the doctor's resting rooms. H. Lack of screening for arms and weapons at the entrance of hospitals. I. Dingy and ill-lit places within the hospitals. J. Medical professionals have to shoulder the responsibility of being both medical and emotional caregivers to patients and their relatives. There are no supportive facilities and no training and communication skills. And K. Certain spaces within hospitals, such as the intensive care unit and the emergency wards, are prone to a greater risk of violence because of the severity of medical conditions of patients in these departments. We have, in this backdrop, formed the view that a national consensus must be evolved after due consultation with all stakeholders on the urgent need to formulate protocols governing the issues which this order has highlighted. We have attempted to compose for this purpose a diverse body of persons with experience in healthcare institutions. A national task force with the following members of the medical profession is hence constituted. 1. Surgeon Vice Admiral Aarti Saryan, AVSM, VSM, Director General Medical Services, Navy. 2. Dr. D. Nageshwar Reddy, Chairman and Managing Director, Asian Institute of Gastroenterology and AIG Hospitals, Hyderabad. 3. Dr. M. Srinivas, Director, All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, Delhi. 4. Dr. Pratima Murthy, Director,
National Institute of Mental Health and Neurosciences, NIMHANS, Bangalore. E. Dr. Govardhan Dutt Puri, Executive Director, All India Institute of Medical Sciences, Jodhpur. 6. Dr. Soumitra Rawat, Chairperson, Institute of Surgical Gastroenterology, GI and HPB Oncosurgery and Liver Transplantation, and Member Board of Management, Sir Gangaram Hospital, New Delhi, and Member Court of Examiners of the Royal College of Surgeons, England. 8. Professor Anita Saxena, Vice Chancellor, Pandit B.D. Sharma Medical University, Rohtak, formerly Dean of Academics, Chief Cardiothoracic Center and Head Cardiology Department at the All India Institute of Medical Sciences, Delhi. 9. Dr. Pallavi Saple, Dean, Grant Medical College and Sir J.J. Group of Hospitals, Mumbai. And 10. Dr. Padma Srivastav, former professor at the Department of Neurology, AIIMS, Delhi, currently serving as the Chairperson of Neurology at Paras Health, Gurugram. The following shall be the ex officio members of the NTF. A. The Cabinet Secretary to the Government of India. B. The Home Secretary to the Government of India. C. The Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. D. Chairperson of the National Medical Commission. And E. President of the National Board of Examinations. The NTF shall formulate effective recommendations to remedy the issues of concern pertaining to safety, working conditions, and well-being of medical professionals and other cognate matters highlighted in the above segments of this order. The NTF shall, while doing so, consider the following aspects to prepare an action plan. The action plan may be categorized under two heads. 1. Preventing violence, including gender-based violence against medical professionals. And 2. Providing an enforceable national protocol for dignified and safe working conditions for interns, residents, senior residents, doctors, nurses, and all medical professionals. 1. Prevention of violence against medical professionals and providing safe working conditions. A. Ensuring due security in medical establishments. 1. Triaging departments and places within the hospital based on the degree of volatility and the possibility of violence. Areas such as emergency rooms and intensive care units are prone to a greater degree of violence and may possibly need additional security in place to deal with any untoward incident. 2. A baggage and person screening system at every entrance of the hospital to ensure that arms are not carried inside the medical establishment. 3. Preventing intoxicated persons from entering the premises of the medical establishment unless they are patients. And 4. Training security personnel employed at hospitals to manage crowds and grieving persons. B. Infrastructural development. 1. Provision of separate resting rooms and duty rooms in each department for A. Male doctors, B. Female doctors, C. Male nurses, D. Female nurses, and E. A gender-neutral common resting space. The room must be well ventilated, have sufficient bed spaces, and provide a facility for drinking water. Access to these rooms must be restricted through installation of security devices. 2. Adopting appropriate technological intervention to regulate access to critical and sensitive areas, including through the use of biometric and facial recognition. 3. Ensuring adequate lighting at all places in the hospital, and if it is a hospital attached to a medical college, all places within the campus. 4. Installation of CCTV cameras at all entrance and exit points of the hospitals and the corridors leading up to all patient rooms. And 5. If the hostels or rooms of the medical professionals are away from the hospital, provision of transport between 10 p.m. to 6 a.m. for those who wish to travel to or from their place of stay to the hospital. C. Employment of social workers trained in grief and crisis counseling at all medical establishments. D. Conducting workshops for all employees of medical establishments, including doctors, nurses, and helpers, on handling grief and crisis. E. Constitution of employee safety committees composed of doctors, interns, residents, and nurses at every medical establishment to conduct quarterly audits on institutional safety measures. F. Including additional requirements on institutional safety measures for medical professionals as a criteria for accreditation of healthcare establishments by the National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers. And G. The possibility of establishing police posts in medical facilities commensurate with the footfall, bed strength, and facilities. 2. Prevention of sexual violence against medical professionals. A. The Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013
applies to hospitals and nursing homes, including private healthcare providers. In terms of the provisions of the Act, an internal complaints committee must be constituted in all hospitals and nursing homes. B. The duties of an employer listed under Section 19 of the Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013, which includes organizing sensitization programs and providing a safe working space, must be discharged. And C. Ensuring for every medical institution a helpline number for medical professionals, which is open 24/7, and emergency distress facilities. It is clarified that the phrase medical professionals used in this judgment encompasses every medical professional, including doctors, medical students who are undergoing their compulsory rotating medical internship as a part of the MBBS cohort, resident doctors and senior resident doctors and nurses, including those who are nursing interns. The phrases medical establishments, hospital, medical institutions are interchangeably used. The NTF shall be at liberty to make recommendation on all aspects of the action plan highlighted above and any other aspects which the members seek to cover. They are at liberty to make additional suggestions where appropriate. The NTF shall also suggest appropriate timelines by which the recommendations could be implemented based on the existing facilities in hospitals. The NTF is required to consult all stakeholders. Bearing in mind the gravity and urgency of the situation, we have included the heads of the National Medical Commission and the National Board of Examinations as ex officio members of the NTF. Bearing in mind the national concerns which have been raised over the issue and the high priority which must be given to the creation of safe working conditions in healthcare institutions, we request the Cabinet Secretary to the Union Government to associate with the work of the NTF. The Home Secretary of the Union Government has also been made a member of the NTF in order to facilitate proper coordination with the state governments. The Secretary to the Ministry of Health and Family Welfare of the Government of India will be the member secretary of the NTF. The Ministry of Health and Family Welfare will provide all logistical support, including making arrangements for travel, stay, and secretarial assistance, and bear the expenses of the members of the NTF. The NTF is requested to submit an interim report within 3 weeks and the final report within 2 months from the date of this order. All state governments and union territory governments, through their secretaries in the Ministries of Health and Family Welfare, and the central government, through the Secretary Union Ministry of Health and Family Welfare, must collate information from all hospitals run by the state and by the central government, respectively, on the following aspects. A. How many security personnel are employed at each hospital and each department? B. Whether there is a baggage and person screening mechanism in place at the entrance of the medical establishment. C. The total number of resting/duty rooms in the hospital and specific details of the number in each department. D. The facilities provided in the resting/duty rooms. E. Information on whether all areas of the hospital are accessible to the general public, and if so, with or without any security restrictions. F. Whether there are CCTV cameras in the hospital. If there are, how many and in which locations? G. Whether the institution provides medical professionals training to appropriately handle the grief of patients. If so, the details of the training must be provided. H. Whether social workers who specialize in handling grief of families of the patients are employed at the hospital. If so, then total number of social workers must be provided. I. Whether there are police outposts within the premises of the hospital or the medical college hospital campus. J. Whether an internal complaints committee in terms of the Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013 has been constituted. And K. Whether the employer of the establishment has discharged the duties prescribed by Section 19 of the Act of 2013. If so, the details of it. The data submitted shall be tabulated and filed with an affidavit by the Union Government within 1 month from this order. The Central Bureau of Investigation shall submit a status report to this court by, we'll say 22nd and not 23rd, by 22nd August 2024 on the progress in the investigation of the crime at RG Kar Medical College Hospital. The state of West Bengal shall also file a status report by 22 August 2024 on the progress of the investigation on the acts of vandalism which took place at the hospital in the aftermath of the incident. The matter will now be listed on 22 August 2020. Only one request. What is shared by the state of West Bengal with your lordships be given to CBI. We also need have it. They cannot have any objection. 1 second, I can just say, when that is.
Lord, what is shared by My lord, can I state- just add one thing, my lord? only what is shared तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद अब आदेश पढ़ रहे हैं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, वो आप लाइव देख रहे हैं। कई अहम बातें की गई हैं सीजेआई की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि बदलाव के लिए एक और बलात्कार का इंतजार नहीं किया जा सकता। मौजूदा जो सुरक्षा मानक हैं वो काफी नहीं है, उनमें तमाम कमियां हैं। डॉक्टर्स की सुरक्षा राष्ट्रहित का मुद्दा है। नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और इसमें देश के कई नामी डॉक्टर्स को बतौर मेंबर्स शामिल किया गया है। 3 हफ्ते का वक्त दिया गया है एनटीएफ को, यानी नेशनल टास्क फोर्स को, अपनी रिपोर्ट देने के लिए। एक और अहम बात की गई पश्चिम बंगाल की सरकार के मद्देनजर, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार से यह अपेक्षा की गई थी कि वो कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अपराध स्थल यानी मौका जो वारदात है उसकी सुरक्षा के लिए राज्य मशीनरी तैनात करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हम ये समझने में बिल्कुल असमर्थ हैं कि इस केस में यानी कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के केस में राज्य सरकार ऐसा क्यों नहीं कर पाई, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई के जिम्मे है। 22 अगस्त तक सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांग ली है सुप्रीम कोर्ट ने। सीबीआई जो भी इस मामले की जांच कर रही है कोलकाता पुलिस के बाद, अब सीबीआई को 23 अगस्त को अपनी जो स्टेटस रिपोर्ट है वो 22 अगस्त को दे देनी होगी और 23 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई होगी। रजनीश रंजन हमारे संवाददाता इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश, कई अहम बातें सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कही गई हैं। नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लिया है। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीबीआई दफ्तर पर वो मौजूद हैं कोलकाता में। कुमार, आपके पास कुछ अपडेट है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि सीबीआई जो है वो जो संजय रॉय है उसको ले जाने की तैयारी कर रही है और मजिस्ट्रेट के सामने में, सियालदह मजिस्ट्रेट के सामने में उसको पेश करने की तैयारी है। जो पीछे अभी थोड़ी सी हलचल हुई थी वो उसी को लेके हुई थी और इसलिए हम थोड़ा शिफ्ट हुए थे। देखिए, पूरे मामले में निश्चित रूप से सीबीआई के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस के ऊपर सवाल खड़े किए हैं उसके बाद से सीबीआई के सामने जो उसकी जिम्मेवारियों का एक तरह से कह सकते हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। और ये बात समझना पड़ेगा समीर कि अगर कोलकाता पुलिस ने सही तरीके से जांच की होती तो शायद आज ये स्थिति नहीं आती। बिल्कुल सही बात है। और 22 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी होगी सीबीआई को, वो सीबीआई जो इस मामले की अब जांच कर रही है। हमारे साथ रजनीश रंजन इस वक्त मौजूद हैं। रजनीश, सुप्रीम कोर्ट की बेहद तल्ख और अहम टिप्पणी, एक तो नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है, उससे रिपोर्ट भी मांगी गई है, सीबीआई से भी स्टेटस रिपोर्ट तलब कर ली है सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत गंभीरता से देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस केस को लिया है। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट कितना गंभीर है इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है और उसके बाद इस तरह के तमाम जो बातें सुप्रीम कोर्ट से आई है और जो ऑर्डर हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया है वो कितना अहम है उसका अंदाज़ा आप लगाइए कि उसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर कैबिनेट सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को बनाया गया है और जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है उसके चेयरमैन भी उसके मेंबर बनाए गए हैं। तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट इस घटना को आसानी से जाने नहीं देगा और अब सीबीआई से जो स्टेटस रिपोर्ट मांगा गया है, यानी कि अब ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट के आज के इस पूरे मामले में ऑब्जर्वेशन और ऑर्डर के बाद कि कोर्ट मॉनिटरिंग ये पूरा मामला होगा और सीबीआई को हर कुछ दिन पे अपना स्टेटस रिपोर्ट जमा कराना होगा, जिसकी शुरुआत परसों होगी। सुप्रीम कोर्ट परसों सीबीआई के स्टेटस रिपोर्ट को देखेगा और उसके बाद उसके अगले दिन यानी 23 तारीख को इस मामले में फिर से एक सुनवाई होगी। बहुत सारे गंभीर बातें सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है, खासतौर पर स्टेट पुलिस, स्टेट मशीनरी, स्टेट गवर्नमेंट का जो पूरा रोल रहा है, जो पूरी भूमिका रही है, उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट नजर आ रहा है और उनका ये कहना कि राज्य की मशीनरी क्या कर रही थी, जो क्राइम सीन
था उसका संरक्षण क्यों नहीं किया गया, और जो बुनियादी सुविधाएं अस्पताल में मिलनी चाहिए एक महिला डॉक्टर को वो नहीं मिल पाया, और इस तरह की बड़ी घटना हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा गंभीर है, और उसकी गंभीरता इस बात से पता चलती है कि उसने एक राष्ट्रीय स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया है, और उसमें तमाम देश के जो बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, जो देश की पॉलिसीज़ को जानते और समझते हैं, उनको उसका मेंबर बनाया गया। रजनीश, बड़ी बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से, कि डॉक्टरों की सुरक्षा का मसला है और ये राष्ट्र हित का मसला है, इसीलिए टास्क फोर्स गठित की जाती है। लेकिन एक अहम बात, अब गुरुवार को सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी। क्या सब कुछ इस केस से रिलेटेड सीबीआई को उस गुरुवार को बताना है? बिल्कुल, देखिए अभी तक सीबीआई ने जो अपनी जांच की है, पिछले 4-5 दिनों में सीबीआई के पास ये जब मामला आया है तब से लेकर उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किया है उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, और इन्वेस्टिगेशन में प्राइमा फेसी सीबीआई के हाथ क्या क्या चीज़ें लगी है उसके डिटेल जानकारी, उसकी माइन्यूट जानकारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी। बिल्कुल रजनीश, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन इस वक्त हमारे संवाददाता पीयूष पांडे जो कि सुनवाई के वक्त कोर्ट रूम में ही मौजूद थे, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, जरा तफसील से बताइए सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में क्या कहा है, क्योंकि कई अहम बातें लगातार सामने आई हैं सुनवाई के दौरान और जब आदेश पढ़ा जा रहा था उस दौरान, जरा बताएं। बिल्कुल समीर, देखिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि एक नेशनल टास्क फोर्स की जरूरत थी और नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर दिया है जो 10 सदस्यीय होगी, और ये 10 सदस्यीय जो नेशनल टास्क फोर्स है विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगी, क्योंकि अदालत का ये मानना था कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी सुरक्षा उचित तरीके से नहीं हो रही है। कभी मरीज के रिश्तेदार उन पर हमला करते हैं, कभी कोई हमला करता है, उनके पास परिवहन और आने जाने का साधन नहीं होता, और उनकी ड्यूटीज भी जो हैं ऐसी होती हैं कि कई बार वो सुरक्षित नहीं रह पाते। तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए जो नेशनल टास्क फोर्स होगी, जो 10 सदस्यीय होगी, वो अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी और उसके बेसिस पर कोर्ट इस मामले में आगे आदेश जारी करेगा। फिलहाल फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त तक सीबीआई से इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट तलब कर ली है, चूंकि बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां फैली थी जिनका इनकार सीधे तौर पर राज्य सरकार की ओर से आज किया गया, क्योंकि कई सवाल जो सीबीआई की तरफ से पूछे गए राज्य सरकार के वकील कपिल सिब्बल से, उन्होंने साफ इनकार किया कि इस मामले में मीडिया में कई ऐसी चीजें सामने आई हैं जो सही नहीं है, जो सोशल मीडिया पर भी सामने आई हैं। तो ऐसी स्थिति में सीबीआई की ओर से स्टेटस रिपोर्ट तलब की गई है, और सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो 22 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आगे सुनवाई करेगा। अहम बात यह है कि जो राष्ट्रीय बेसिकली नेशनल टास्क फोर्स है जो 10 सदस्यीय है, वो विभिन्न पहलुओं पर 12 विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगा और उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट तय करेगा कि देश भर में जो स्थितियां हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनकी सुरक्षा है, उनके लिए सुविधाएं हैं और उनको किस तरह से और बेहतर तरीके से काम करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ये सभी पहलू सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखवाए हैं और सीधे तौर पर नेशनल टास्क फोर्स को इन बिंदुओं पर अपनी राय देने के लिए कहा है और ये 2 माह में रिपोर्ट तैयार करके नेशनल टास्क फोर्स को सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 22 अगस्त को जब सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी जाएगी, तब आगे क्या इस मामले में रुख अपनाता है। पीयूष, हम समझना चाहेंगे ये जो 12 सूत्रीय आपने बताई ये बात, ये जो बिंदु हैं 12 सूत्रीय, क्योंकि डॉक्टर्स की सुरक्षा का मसला और ये बताया गया कि बार बार इस तरह की हिंसात्मक गतिविधि होती है डॉक्टर्स के खिलाफ, कभी मरीज के परिजन भी हमला करते हैं, कभी डॉक्टर्स के भीतर अंतर्विरोध होता है। तो इसके लिए जो टास्क फोर्स बनाई गई है वो क्या क्या काम करेगी, अब डिटेलिंग इसकी क्या है? देखिए बिल्कुल सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखवाया है कि आपातकालीन कक्ष के क्षेत्रों की अतिरिक्त सुरक्षा की क्या जरूरत होती है, यानी कि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा के मद्देनजर हथियारों के प्रवेश के लिए जो स्क्रीनिंग होनी चाहिए वो अस्पतालों में आमतौर पर नदारत देखी गई है, सरकारी अस्पतालों में, और कई बार बड़े बड़े अस्पतालों में भी ये नदारत होती है। तो ऐसी स्थिति में आखिर सुरक्षा किस तरह से पुख्ता की जाए, ये सबसे पहला सवाल है जो नेशनल टास्क फोर्स को सुलझाना है, इस पर अपनी राय देनी है। उसके अलावा
जो रोगी होता है उसके साथ में, जो मरीज के साथ में जो तीमारदार होते हैं, कई बार कई तीमारदार साथ में आते हैं और जब रोगी के मामले में कुछ उलझन सामने आती है तो ऐसी स्थिति में डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा भी होती है और ये कैसे रोकी जाए, ये दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने जो है भेजा है। बिल्कुल, कुल मिलाकर मेडिकल कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की बात कही गई है आदेश में और इसके लिए तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर दिया है, एनटीएफ का गठन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। हमारे साथ कुमार कुंदन इस वक्त मौजूद हैं। कुमार, देखिए, कोलकाता पुलिस की जांच पर कई सवाल उठे, राज्य सरकार के रवैये पर कई सवाल उठे और आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस बात का जिक्र किया है उसमें यह कहा गया है कि राज्य सरकार से यह अपेक्षा की गई थी कि वो कानून व्यवस्था को बनाए रखने और अपराध स्थल की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी, लेकिन हम असमर्थ हैं ये जानने में कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। यह बड़ा सवाल है कोलकाता पुलिस की तरफ से, जो कोलकाता का एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से, इसका जवाब क्या है? निश्चित रूप से समीर, यह बहुत ही हास्यास्पद है कि जिस बिल्डिंग में एक डॉक्टर की मौत होती है, ब्रूटल हत्या होती है, और उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर पुलिस का कंट्रोल रूम होता है, पुलिस को 6 घंटे बाद इस बात की जानकारी मिलती है कि वहां किसी की हत्या हुई है। और इतना ही नहीं, उस प्लेस को जहां सिक्योर करना चाहिए था, वहां 14 और 15 अगस्त की रात को क्या हुआ, लोगों ने आके किस तरीके से पूरे इलाके को वैंडलाइज किया, यह भी तस्वीर में TV9 भारतवर्ष ने दर्शकों को अपने दिखाया। तो यह अपने आप में एक बहुत सवाल पैदा करता है कि आखिरकार पुलिस थी कहाँ, सिस्टम था कहाँ। वो सिस्टम जिसके ऊपर से जनता का विश्वास है, वो जनता का विश्वास डालने में सिस्टम पूरी तरीके से फेल रहा है। उल्टे सिस्टम लोगों को बचाने में जुटी रही और आज ये नौबत आ गई है कि अविश्वास का आलम यह है कि इतने दिन हो चुके हैं, डॉक्टर कोई काम पर जाने को तैयार नहीं है। हालांकि समीर, इस बीच में एक जानकारी दे दूं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तमाम डॉक्टर संगठन जो हैं उन्होंने अपनी अपनी बैठक बुलाई है कि क्या इस हड़ताल को कंटिन्यू किया जाए या खत्म किया जाए। इस बैठक में ये फैसला होगा कि ये हड़ताल खत्म होगी अथवा नहीं। लेकिन जो मेरे पास जानकारी है, उस जानकारी के हिसाब से और जो देखा हमने, आज भी कलकत्ता के अस्पताल देख लीजिए, आरजीकर अस्पताल की स्थिति में जो पुलिस की बैरिकेटिंग और प्रॉपर सब कुछ होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई, वो नहीं नजर आ रही है। लापरवाहियों का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की ये तल्ख टिप्पणियां इस वक्त हमारे सामने हैं। पीयूष पांडे, आप तो कोर्ट रूम में मौजूद ही थे। सीजीआई जब इस मामले को लेकर टिप्पणी कर रहे थे, उस वक्त कपिल सिब्बल बीच में अपनी बात रखने की का आदेश लगातार वो मांग रहे थे कि भाई उन्हें ये इजाजत दी जाए कि वो अपनी बात भी रखें। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कुछ बातें कही गई, उसका भी उन्होंने खंडन किया। क्या हुआ पूरे कोर्ट रूम में आज इस मामले की सुनवाई के दौरान, जरा तफसील से बताइए। बिल्कुल समीर, देखिए, जैसे ही सुनवाई शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने ये कहा, स्पष्ट किया कि हमने आखिर इस मामले पर स्वतः संज्ञान क्यों लिया है, क्योंकि इस मामले में जो डॉक्टरों की हालत है, उनकी सुरक्षा है, वो लगातार कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है और इस मामले को देख करके पूरे देश में जो रोष है, ऐसी स्थिति में ये जरूरी है कि हम हस्तक्षेप करें। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो पश्चिम बंगाल के वकील पेश हुए थे कपिल सिब्बल, उनसे सवाल करना शुरू किया और 1-2 सवालों के बाद कपिल सिब्बल ने ये स्पष्ट किया कि कई चीजें ऐसी सोशल मीडिया पर और मीडिया पर सामने आई हैं जो सही नहीं है। कई मौकों पर यह भी कहा गया कपिल सिब्बल की ओर से कि इस मामले में जो राजनीति है वो भी कहीं ना कहीं आड़े आ रही है। तो इसके बाद जो सॉलिसिटर जनरल थे उनका ये कहना था कि वो इस मामले को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद ही उनकी तरफ से एक दलील दी गई जिसका फिर से कपिल सिब्बल ने विरोध किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद ये स्पष्ट कर दिया कि वो इसमें एक नेशनल टास्क फोर्स गठित करने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने 10 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर दिया और उनके लिए 13 सूत्रीय जो सवाल हैं वो उनके सामने भेजे हैं, जिस पर उन्हें 3 हफ्ते में एक इनिशियल रिपोर्ट देनी है और उसके बाद 2 माह में अपनी फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट है, यानी कि इस मामले का जो बड़ा स्वरूप है, उस पर गौर करते हुए सीधे तौर पर नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर दिया और पूरे देश भर में जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो स्थितियां हैं वो भले ही उनकी सुविधा से रिलेटेड हो या फिर उनकी सुरक्षा से रिलेटेड हो और या फिर उनके आने जाने से संबंधित हो, सभी पहलुओं पर जो 13 सवाल
सवाल हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स को भेजे हैं और इस पर जो इनिशियल रिपोर्ट है वो 3 सप्ताह में नेशनल टास्क फोर्स की ओर से दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट को और इसके बाद 2 माह के भीतर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उनको फाइनल रिपोर्ट अपनी सौंपनी होगी। और साथ ही इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 22 अगस्त तक अपनी स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। ठीक है और पीयूष, अब इसके 22 बाद ही अगस्त तक सुप्रीम इंतजार कोर्ट इस करना मामले में होगा। जो राज्य की विफलताएं हैं उसको लेकर के सवाल करेगा। ठीक, बड़ी बात आपने बताई और बड़े बिंदु आपने बताए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये भयावह मामला है, ये राष्ट्रीय हित से जुड़ा मामला है, सुरक्षा का मसला है, डॉक्टर्स की सुरक्षा का मसला है। डॉक्टर्स हड़ताल से वापस लौटें क्योंकि हमने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के साथ इस मुद्दे को उठाया, हम हाई कोर्ट में नहीं भेजेंगे। बहुत बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की आई है। पीयूष बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त आरएमएल अस्पताल से जुड़ रही है शालिनी वाजपेयी, वो डॉक्टर्स के साथ मौजूद है, उनके साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं। शालिनी, बड़ी बातें कही गई है डॉक्टर्स की सुरक्षा के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से, वहां डॉक्टर्स क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अगर आप बात कर पाए। बिल्कुल, मैं अभी यहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हूँ और यहाँ पर देखिएगा कि जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर बैठे हैं और पूरी एक एक पॉइंट उन्होंने कोर्ट में जो भी बात हुई सारी उन्होंने सुनी। यहाँ पर जो भी फैसला दिया जा रहा है उस पर नज़र बनाए हुए हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे जो आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, सुरक्षा को लेकर इतनी बात बोली, इस पर क्या बोलेंगे? सुरक्षा को लेकर के सारी बातों को ध्यान में रखें। जो हमारी डिमांड थी स्पेशल रूप से कि सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का, जिसके लिए जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का भी, तो एक्ट में भी तो यही चीज़ है कि सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ही मुख्य बातें का है। तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है तो एक अच्छी विषय है। आप क्या कहेंगी? हाँ जी, एक जो हम बहुत खुश हैं कि जो सीजीआई ने बात कही है वो ग्राउंड रियलिटी के बेसिस पे करी है। जैसे हॉस्पिटल में कॉमन वॉशरूम्स होते हैं, मेल एंड फीमेल के लिए ड्यूटी रूम्स नहीं है, बेसिक अमेनिटीज़ फॉर लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क नहीं प्रोवाइड की जाती हैं, तो ये सब उन्होंने सही किया है। उन्होंने और एक चीज़ हाईलाइट किया है कि दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक राइट, पीसफुल प्रोटेस्ट को आप रोक नहीं सकते हो, ये भी हम बहुत वेलकम करते हैं। तीसरी बात जो उन्होंने की है कि नेशनल प्रोटोकॉल होना चाहिए, तो हम बहुत खुश हैं क्योंकि एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। तो ये स्वागत कर रही है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आज बोला है उसका, आप क्या कहेंगे? हमारी जितनी भी प्रॉब्लम थी सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया है, मुझे इस बात की खुशी है। आगे क्या डिसीजन आएगा नहीं आएगा, जहाँ तक हम समझते हैं हमारे फेवर में ही आएगा। जो कुछ भी वो करना चाहेंगे हम है कि हमारे फेवर में आए। नेक्स्ट डेट में हो चाहे जब भी हो, वो कुछ अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही करेंगे। ये बात बार बार बोल रहे हैं और भी लोगों से हम जो बातचीत करते हैं। शालिनी, एक सवाल पूछ लीजिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब डॉक्टर्स काम पर वापस लौटेंगे? देखिए, सुरक्षा को लेके जो भी इन्होंने कॉग्निसेंस में पॉइंट्स लिए हैं कि क्या अब डॉक्टर्स काम पर वापस लौटेंगे? क्योंकि जो आज बोला है सुप्रीम कोर्ट ने उससे आप लोग काफी एक मुतमईन है एक तरह से उनकी तो क्या अब काम होगा हॉस्पिटल? देखिए, जो डिसीजंस है वो तो वेलकम है, बट ये है कि हमारे जो कंबाइंड रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, सिर्फ आरएमएल के ही नहीं, मतलब जो बाकी जितने भी दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो लोग आपस में इन कंसेंसस क्या डिसीजन लेते हैं उसके बेसिस पे हम लोग स्ट्राइक को कंटिन्यू करना है या नहीं करना उसका डिसीजन होगा। ठीक है, अभी तो सब प्रोसीडिंग्स को ही देख रहे हैं, उसमें दे आर ट्राइंग टू एब्जॉर्ब द थिंग्स एंड डिपेंडिंग ऑन दैट पीपल विल टेक द डिसीजन। आपको क्या लगता है अब आप लोग काम पर लौटेंगे? Yeah, it will be based on the RDA's decision only. All medical colleges of Delhi, उनका RDA बैठेंगे, they'll talk and then only will decide. बिल्कुल, ये डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि हम पहले आरडीएस के साथ मीटिंग करेंगे, उसके बाद आगे का कोई फैसला लेंगे। और मांगे तो अभी आगे अगर शालिनी काम पर डॉक्टर्स ये बता पाएं कि क्या मांगे हैं उनकी, आगे हड़ताल पे अब भी बैठे हुए हैं सभी डॉक्टर्स, आपके पीछे हम देख रहे हैं, क्या मांगे हैं उनकी अब? जी बिल्कुल, तो हम जानेंगे कि आप क्या मांगे क्या है आप लोगों की, क्या आगे भी क्या हड़ताल जारी रहेगी? एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि इमरजेंसी सर्विसेज डे 1 से चालू हैं और इलेक्टिव जो केसेस हैं वो भी हो रही हैं, कंसल्टेंट्स ओपीडी भी देख रहे हैं, तो ये गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। नहीं, रेजिडेंट डॉक्टर्स तो हड़ताल पर है ना? रेजिडेंट डॉक्टर्स, पीजीज, पोस्ट ग्रेजुएट्स हड़ताल पे हैं, बट कंसल्टेंट्स सब कुछ देख रहे हैं, हमारे ओटीज भी चल रहे हैं। रेजिडेंट्स की हड़ताल क्या खत्म होने की लग रहा है आपको कोई? देखो, अभी तो
मीटिंग नहीं हुई है, ना ये सुप्रीम कोर्ट का जो हियरिंग है वो खत्म हुआ है, तो अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है शालिनी, अभी अगर निर्णय आज नहीं हुआ है हियरिंग में इस कुछ बात को आपको लेकर। लगता है कि आता हूं मैं आपके पास। इस बीच देखिए एक अहम खबर है, पूर्व प्रिंसिपल को नोटिस भेजेगी कोलकाता पुलिस। संदीप घोष पर पीड़िता की पहचान उजागर करने का भी आरोप लगा है। पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ कर सकती है पुलिस। आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला भी दर्ज कर लिया गया है। कोलकाता पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है संदीप घोष के खिलाफ और आज सीबीआई की एक टीम संदीप घोष से पूछताछ भी कर रही है। यह भी जानकारी थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी कुमार कुंदन, जो कि सीबीआई दफ्तर कोलकाता में ही मौजूद हैं, उन्होंने हमें दी है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता रेप मर्डर केस में बड़ा खुलासा भी हुआ है। वारदात के बाद प्रिंसिपल ने की थी बैठक भी। सुबह 7 बजे मिली थी वारदात की जानकारी और फिर बैठक की गई प्रिंसिपल की ओर से। जानकारी मिलते ही सेमिनार हॉल में कर्मचारी तक घुस गए, यानी उसको कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया था। प्रिंसिपल ने पुलिस को काफी देर से जानकारी दी। यही मसला सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया कि इतनी देर से क्यों जानकारी दी गई परिजनों को। आज 5वें दिन भी प्रिंसिपल से पूछताछ होगी। ये लगातार पूछताछ हो रही है और उसके बाद अब ये जानकारी जो प्रिंसिपल से मिलेगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी सीबीआई के लिए। तो देखिए, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर अब शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। कोलकाता पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की जांच के दायरे में भी संदीप घोष हैं। संदीप घोष से 4 दिन से पूछताछ जारी है। ये अहम जो जानकारियां हैं वो आपको दे दें, संदीप घोष से जुड़ी हुई 4 दिन से उनसे पूछताछ हो रही है। कोलकाता पुलिस ने करप्शन के मामले में संदीप घोष पर एफआईआर दर्ज की है। हालांकि टाइमिंग को लेकर सवाल भी उठते नजर आ रहे हैं। आज 5वें दिन भी संदीप घोष से पूछताछ कर रही है सीबीआई की टीम। अब तक 53 घंटे पूछताछ हो चुकी है। कोलकाता पुलिस पर पीड़िता की पहचान उजागर करने का आरोप कोलकाता पुलिस ने संदीप घोष पर लगाया है। प्रिंसिपल ने देर से पुलिस को जानकारी दी, सीबीआई कह रही है। वित्तीय लेन देन की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है कोलकाता पुलिस की तरफ से, यानी सीबीआई और कोलकाता पुलिस दोनों की जांच के घेरे में इस वक्त संदीप घोष नजर आ रहे हैं। 2021 से अब तक की जो वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं उनकी जांच की जा रही है और वारदात की खबर मिलने पर बैठक की यह जानकारी भी संदीप घोष को लेकर सामने आई है। यानी पहले वारदात की खबर मिलती है, पुलिस को इत्तला बाद में दी जाती है। संदीप घोष पहले एक मीटिंग करते हैं और उसके बाद पुलिस को जानकारी घटना की दी जाती है। हमारे साथ पीयूष पांडे इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं, जो पूरी सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में मौजूद रहे। पीयूष, जरा तफसील से बताइए, राज्य सरकार की भूमिका को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की हैं, अपने आदेश में उसका भी जिक्र किया है। क्या वो सवाल हैं? राज्य सरकार से क्या पूछा गया है? क्योंकि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ कह रहे थे कि हम ये समझने में नाकाम साबित हो रहे हैं कि आखिर इतना हीला हवाली वाला रवैया, लापरवाही वाला रवैया क्यों था सरकार का। बिल्कुल समीर, देखिए सबसे अहम बात यह है कि सीजीआई ने शुरुआत में ही इस मामले में कपिल सिब्बल से सवाल किए। जी, पहला उनकी आशंका थी कि आखिर एफआईआर देर से क्यों की गई। दूसरी बात यह थी कि घटना स्थल जो थी उसकी सुरक्षा क्यों नहीं की गई पुलिस की तरफ से, क्योंकि अगर घटना स्थल की सुरक्षा नहीं की जाएगी, उसे संरक्षित नहीं रखा जाएगा, प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में वहां जो साक्ष्य हैं वो मिटाए जा सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि वो ऐसी जगह रेप और हत्या हुई जहां पर आसानी से जो आरोपी है या फिर जिसने ऐसे कार्य को अंजाम दिया वो ये कोशिश कर सकता है कि किसी भी तरह से सभी सबूत मिटा दिए जाएं। और यही वजह थी, यही आशंका थी सीजीआई की कि आखिर वहां पर सुरक्षा क्यों नहीं की गई, संरक्षित क्यों नहीं किया गया घटना स्थल को। लेकिन इसका स्पष्ट जवाब कपिल सिब्बल के पास नहीं था। वो सिर्फ ही लगातार ये कह रहे थे कि बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो बनाई गई हैं, जो सोशल मीडिया पर हैं, जो मीडिया पर हैं। लगातार इस मामले में वो सोशल मीडिया और मीडिया का ही हवाला दे रहे थे। हालांकि कुछ सवालों पर उन्होंने सीधे तौर पर इनकार भी किया, जैसा उनका ये कहना था कि कॉलर बोन नहीं टूटी हुई थी और उसका कोई भी जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं किया गया है। लेकिन इसके बावजूद ये एक न्यूज जो है सामने आ रही है और इसके बाद
लगातार सीजीआई की ओर से जो सवाल किए गए वो जवाब देते रहे और सिब्बल ने यह भी कहा कि वो हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं क्योंकि बहुत सारे भ्रम भी फैले हुए हैं। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल की तरफ से भी ये कहा गया कि इस मामले को वो पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर उसके बाद उनकी ओर से एक दलील दी गई, जिसके बाद कपिल सिब्बल ने आपत्ति जताई कि जब सॉलिसिटर जनरल इस मामले में ये स्पष्ट कर चुके हैं कि वो इस मामले को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं, उसके बावजूद ऐसी दलील दे रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले में राज्य सरकार पर बहुत तीखा प्रहार नहीं किया है, सिर्फ सवाल जवाब किए हैं। हालांकि ये स्पष्ट जरूर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि उनकी ओर से हीला हवाली की गई, मामले में सतर्कता नहीं बरती गई और गंभीरता से इस मामले को नहीं लिया गया, जिसके चलते ही हाईकोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो एस्पेक्ट है वो ये है कि किसी भी तरह से पूरे देश में जो डॉक्टरों की सुरक्षा है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो नर्सेज हैं, उनकी सुरक्षा को पुख्ता किया जाए, उनके लिए सुविधाओं को बेहतर किया जाए और हर हाल में उनको सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि वो लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं और ऐसी स्थिति में अगर उनके खिलाफ कुछ होता है तो ये बहुत ही गलत होगा, ये राष्ट्र हित के खिलाफ होगा। ये तक सीजीआई ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है और अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट जब अगली सुनवाई करेगा तब तक सीबीआई की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी जाएगी और उस स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई इस मामले में जो सवाल जवाब हैं वो राज्य सरकार से अगली सुनवाई में करेगा। जी बड़ी बात बता रहे हैं पीयूष पांडे, और आप ही के जरिए जो इन्फॉर्मेशन भेजी गई उसके मुताबिक ये तक कहा गया कपिल सिब्बल की ओर से कि 37 गिरफ्तारियां हुई हैं, 50 एफआईआर हुई है, उस पर भी जजेस की तरफ से टिप्पणी आई है। बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ, एक बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको दे दें। पीड़िता के पिता से गवर्नर जो है पश्चिम बंगाल के आनंद बोस ने बातचीत की है। पीड़िता के पिता से राज्यपाल ने पीड़िता के पिता से ये कहा है कि हम सभी आपके साथ हैं, हम सभी आपके साथ हैं, ये कहा गया उनकी ओर से, गवर्नर की ओर से। राज्यपाल ने पीड़िता के पिता से कहा आपको न्याय जरूर मिलेगा। क्या कुछ कहा गया आपको सुनवाते हैं। हेलो, मैं आनंद बोस बोल रहा हूँ, गवर्नर। सीबी आनंद, यस, आपसे मिलना चाहिए। मैं उसका पिताजी बोल रहा हूँ। या मालूम, हम सब आपके साथ हैं। ठीक है, आप तो मेरा प्रशासनिक प्रधान है, आपके पास एक मेरा, हम लोग एक ही आदमी है, आई वांट जस्टिस। वी विल गेट जस्टिस, वी आर ऑल विथ यू। आज मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में सारे लीडर्स के बारे में मैं यह डिस्कशन किया है। जब आपका कन्वीनियंस है मैं वहाँ घर आऊँगा, आपकी कन्वीनियंस। आने से आपका आने से हम तो बहुत अच्छा लगेगा। मैडम कैसा है? आप हमारा प्रशासनिक प्रधान है, आप जो गाइडलाइन हमको देंगे हम ऐसे चलने का कोशिश करेंगे। हम सब आपके साथ हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आपके घर आऊंगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक है, ओके। पीड़िता के पिता से गवर्नर ने बात की है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि इंसाफ जरूर मिलेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज कई अहम सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, सीजीआई ने कहा कि क्या प्रिंसिपल छुट्टी पर हैं या निलंबित हैं। कपिल सिब्बल जो कि पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से पेश हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने जवाब दिया एसआईटी भी गठित है और वो हाईकोर्ट के निर्देशानुसार छुट्टी पर है। एसजी ने कहा कि राज्य द्वारा जो कुछ भी साझा किया जाता है वो सीबीआई को दिया जाना चाहिए। सिब्बल ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो कुछ है वो सही नहीं है। सीजीआई ने कहा लेकिन एफआईआर दर्ज करने में अस्पष्ट देरी हुई है। राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन लोगों ने बर्बरता की है उनके खिलाफ फौरन मुकदमा दर्ज हो। सिब्बल ने कहा कि 37 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 50 एफआईआर दर्ज की गई है। महाराष्ट्र के ठाणे से खबर है, ठाणे के बदलापुर में यौन शोषण पर हंगामा हो गया। 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण मामले में प्रदर्शन हुआ है। अभिभावकों ने स्कूल के सामने प्रदर्शन किया है। स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। तो ठाणे का ये मामला जिस पर लगातार हंगामा हो रहा है और प्रदर्शन किया जा रहा है, यौन शोषण पर हंगामा हुआ है।
और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इस मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। 2 बच्चियों के साथ दरअसल यौन शोषण का मामला सामने आया और उसके बाद लोग यहां पर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अभिभावकों ने स्कूल के सामने प्रदर्शन किया है, स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो यौन शोषण का मामला आने के बाद इस पूरे मामले पर विवाद बढ़ गया है, हंगामा हो रहा है, सड़कों पर लोग उतर आए हैं, बड़ी संख्या में अभिभावकों के साथ सड़कों पर लोग उतर आए हैं। अब क्यों भड़के अभिभावक, आपको बताते हैं। स्कूल प्रशासन अभी तक सामने क्यों नहीं आ रहा है, जिम्मेदारी नहीं लिया जा रहा है स्कूल प्रशासन की ओर से, ये बड़ी मांग है। और स्कूल प्रशासन सामने आकर इस बात की माफी मांगे, प्रशासन बच्चों की सुरक्षा की गारंटी दे, ये मांग की जा रही है अभिभावकों की ओर से, पेरेंट्स की ओर से। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, ये इस मामले में अपडेट है। और पुलिस तो जांच कर ही रही है, लेकिन मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की तैयारी भी पुलिस की है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। स्कूल प्रशासन ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, वो सामने नहीं आया, माफी नहीं मांगी गई, इस वजह से ये मांग की जा रही है अभिभावकों की ओर से कि स्कूल प्रशासन माफी मांगे। लेकिन अभी जो प्रदर्शन की तस्वीरें हैं वो लगातार दिखा रही हैं कि इस मामले में इंसाफ की गुहार हो रही है। लोग तख्तियां लेकर इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं। राजीव हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राजीव सिंह, राजीव, इस पूरे मामले पर स्कूल प्रशासन की क्या एक भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई? देखिए, दरअसल लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि 3 दिन पहले घटना हुई थी। शुरुआत में जब ये पूरा मामला सामने आया तो स्कूल प्रशासन ने इस पूरे मामले में लापरवाही बरती, खुद से इस मामले में सत्ता संज्ञान लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। और मामला सामने आने के बाद में उन्होंने अभिभावकों पर भी दबाव बनाया कि इस पूरे मामले को दबा दिया जाए, बाहर नहीं लाया जाए। लेकिन इस पूरे मामले में अभिभावकों ने पुलिस थाने में FIR दर्ज करवाई, जिस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक लोगों के दबाव के बाद में प्रशासन के पूरा मामला उजागर होने के बाद में 4 लोगों को इस पूरे मामले में स्कूल के जो है कार्रवाई की गई है। लेकिन जिस तरह से स्कूल का रवैया रहा शुरुआत से कि इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी, चूंकि प्राइवेट स्कूल था, निजी स्कूल था, स्कूल की अपनी रिपुटेशन बचाने के लिए इतने बड़े अपराध को छुपाने की कोशिश की गई। इसी बात को लेकर लोगों में नाराजगी और लोगों की मांग ये है कि इस पूरे मामले में जो आरोपी है उसको फांसी की सजा दी जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्कूल के मंत्री हैं दीपक केसरकर, थोड़ी देर पहले ही उन्होंने भी बात की। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में 4 लोगों पर कार्रवाई की गई है और साथ साथ जो विभागीय अधिकारी है उनको जांच का आदेश दिया गया है कि क्या स्कूल प्रशासन ने इसमें लापरवाही बरती है क्या। अगर इस तरह की बात सामने आती है तो स्कूल पर भी सरकार निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी। फिलहाल उन्होंने इस पूरे मामले में CM और डिप्टी CM को भी जानकारी दी है। उनका यह कहना है कि CM और डिप्टी CM इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल, तो महाराष्ट्र के बदलापुर में 3.5 घंटे से लोकल सेवा ठप है। अंबरनाथ से बदलापुर जाने वाली सारी ट्रेनें रोक दी गई हैं क्योंकि इस पूरे इलाके में जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। ठाणे के बदलापुर में 2 बच्चियों से यौन शोषण का बेहद संगीन आरोप लगा है और यह पूरा मामला सामने आया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये देखिए किस तरह से लोग वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और बदलापुर मामले को लेकर महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया है, आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन फास्ट ट्रैक जांच हो इस मामले की, ये डिमांड अभिभावकों की तरफ से की जा रही है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से जो लोकल ट्रेन स्टेशन है वहां पर भी लोगों ने चक्का जाम करने की कोशिश की है। पटरियों पर लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं, लोकल ट्रेनें चल नहीं पा रही हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं सड़कों पर भी जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है और अभिभावकों के मन में, जहन में बहुत गुस्सा है क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी हुई है और इसके बाद लोगों का गुस्सा उबाल पर है। पुलिस की तरफ से दलील ये दी जा रही है कि आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। स्कूल के जो सफाई कर्मचारी हैं उन पर यौन शोषण का आरोप लगा है। बवाल के बाद स्कूल को 5 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन स्कूल प्रशासन की तरफ से जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए, ये अभिभावक आरोप लगा रहे हैं। राजीव, फिलहाल इस प्रोटेस्ट को बहाल करने की, इस रेलवे मार्ग को कोई कोशिश होती हुई नजर आ रही है क्या? कोई पहुंचा है इन लोगों से मिलने के लिए जो लगातार अपनी जायज वाजिब मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों यात्री जो हैं पिछले 3.5 घंटे से जहां तहां लोकल ट्रेन में फंसे हुए हैं। हाँ। सुबह सवेरे जब लोग काम के लिए निकले थे अंबरनाथ से, बदलापुर से, वो तमाम लोग ट्रेन में अटक गए। बहुत सारे लोग रेलवे ट्रैक से चलकर जाने को मजबूर हुए, लेकिन वहां पर GRP, RPF
मध्य रेलवे के अधिकारी, साथ साथ में सिटी पुलिस के अधिकारी, वो लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। उनका साफ कहना है कि जब तक उन्हें आश्वासन नहीं दिया जाता लिखित तौर पर, तब तक जो है इस पूरे मामले में वो वहां पर अपना जो प्रदर्शन है वो खत्म नहीं करेंगे। यही वजह है, जबकि सामान्य तौर पर अगर मुंबई में कहीं पर भी रेलवे ट्रैक को रोकने की कोशिश की जाती है, वहां पर लोकल ट्रेन रोकने की कोशिश की जाती है, तो महज 5 से 7 मिनट में ही लोगों को हटा दिया जाता है, क्योंकि हर लगभग 3 से 5 मिनट पर लोकल ट्रेन का जो शेड्यूल होता है वो रनिंग का शेड्यूल होता है। ऐसे में अगर 3-4 घंटों से ट्रेन थमी हुई है तो समझा जा सकता है कि किस तरह की परिस्थिति शहर में होगी। वहीं ट्रैफिक भी इस वजह से शहर में बहुत ज्यादा जमा हो गई है। अधिकारी जो इस पूरे मामले में जवाब नहीं दे रहे हैं। डीसीपी का जरूर कहना है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ठीक में है पुलिस राजीव, और जो अभी आपने जानकारी दी वो महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर का बयान आया है इस मामले को लेकर। उनकी तरफ से कहा गया है कि पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो भी इंसिडेंस अंबरनाथ में हुआ बहुत ही बुरा हो गया है। हमारी पूरी मशीनरी एक्टिवेट हो गई है। हमारे जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, आज मेरे डिपार्टमेंट में 4 IAS ऑफिसर है, सब लोग पुणे से, मुंबई से सब लोग इकट्ठा है। हमारी पूरी जो मशीनरी है महाराष्ट्र की एजुकेशन डिपार्टमेंट की, वो पूरी ऑनलाइन थी। मैं आपके लिए बात करने इसलिए मैं यहाँ पे आ गया, लेकिन 8 महीना पहले मैंने मीटिंग ली थी कि बच्चे सुरक्षित रहे, इसीलिए हमने सखी सावित्री समिति का गठन किया है। इसमें जो 4 टीचर्स थे मतलब 2 टीचर है, एक हेडमास्टर है, एक क्लास टीचर है और 2 असिस्टेंट है जो बच्चों को देखती थी, क्योंकि वे प्री प्राइमरी के बच्चे थे, केजी जूनियर केजी वाले बच्चे थे, तो उनको भी सस्पेंड किया गया है और उस स्कूल को भी नोटिस दिया गया हुआ है। और एक ऐसे पाया गया था कि ये जो इंसिडेंस हुआ वो 13 से 16 तक हुआ था और 18 तारीख को इसके 13 से 16 तक हुआ था और 18 को जब कंप्लेंट दी गई तो 12 घंटे तक इसका कुछ कॉग्निजेंस नहीं लिया गया, इसलिए वहाँ की जो सीनियर पीआई है उनको ट्रांसफर किया गया है। और इस बीच आपको बता दें, ठाणे यौन शोषण केस पर सीएम का आदेश भी आ चुका है। मामले को फास्ट ट्रैक में भेजा गया है। ये एकनाथ शिंदे की तरफ से आदेश आया है। इस पूरे मामले पर एक्शन दिखाई दे रहा है सरकार की तरफ से, प्रशासन की ओर से। पुलिस काम कर रही है, एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन इस मामले की तफ्तीश तक जाने के लिए आगे कार्रवाई हो रही है। जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है उन्होंने कहा है कि पॉक्सो के तहत आगे इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है।